السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً للہ تعالی اولا وثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني المكي المدني الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی محبت کے ساتھ باواز بلند ذوق شوق سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناز کیوں نہ کریں آقا آپ سے نسبت والے، ناز کیوں نہ کریں آقا آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ہو ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے۔ وہ لوگ جو ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے، اور جن کے دل میں ہو ختم نبوت کی سچی جو محبت، وہ خون میں نہاتے ہیں تو قطرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تعظیم و تکریم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جھاوریاں اور آس پاس سے آنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب و اہل بیت کے دیوانوں، اسٹیج پر اکابرین علماء کرام کا خوبصورت گلدستہ سجا ہے۔ مجھ نچیز طالب علم کو جو مخصوص عنوان سونپا گیا ہے، وقت بہت محدود ہے، اس وقت میں ہی اپنے عنوان کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس توقع اور اس امید سے کہ آپ حضرات جو ان کانفرنسوں کا مقصد ہے محض وقتی واہ واہ نعرہ لگانا نہیں بلکہ نظریہ لے کے جانا، اس کے اوپر آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، تحفظ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر ایک، ختم نبوت کا معنی محض انقطاع نبوت نہیں ہے، قطع نبوت نہیں ہے کہ نبوت کا نور عالم سے مسلوب ہو گیا، بلکہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کا مطلب یوں سمجھانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے نبی جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے نبوت کا آغاز کیا،
इस वस्फ नबुव्वत के साथ वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला के 1.25 लाख अंबिया इस मनसब से फायज होते रहे, वस्फ नबुव्वत उन्हें मिलता रहा। ये नबुव्वत का वस्फ चला, चलते चलते सिलसिला नबुव्वत में जिस जिस नबी को जो जो कमाल मिला, जो जो दर्जा मिला, जो जो खूबी मिली, जो जो मोजज़ा मिला, अब नबुव्वत का वस्फ चलते चलते उस आखिरी हद पर आके ठहरा है कि नबुव्वत के तमाम औसाफ, नबुव्वत के तमाम मराती, नबुव्वत की तमाम अक़साम, नबुव्वत के सारे उलूम उस आखिरी हस्ती में आके जमा हो गए। मेरे आपके आका पर जब नबुव्वत आके पहुंची, इससे पहले जब से नबुव्वत चली, जिस जिस नबी को नबुव्वत से कायनात के रब ने शरफ बख्शा, उन तमाम को मिलने वाले जो जो कमालात थे, जो जो मरातिब थे, जो जो उलूम थे, उन तमाम के तमाम उलूम को रब ने ज़ात मुस्तफ़ा में कामिल कर दिया। नबुव्वत का कोई वसफ, नबुव्वत का कोई दर्जा, नबुव्वत का कोई कमाल, नबुव्वत का कोई हुस्न ऐसा नहीं जो दामने मोहम्मद में रब ने जमा ना किया हो। तो खत्म नबुव्वत का माना तकमीले नबुव्वत के हैं। कायनात के रब ने मेरे आपके आका इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतियबुल अंबिया, ताजदार मदीना, राहत कल्ब सीना, साकी कौसर, शाफी माशर, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, महबूबे कायनात, रौनके कायनात, मरकज़े कायनात, वजह कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, फ़ख्र इंसानियत, फ़ख्र आदमियत, आपकी ज़ात पे अल्लाह ने नबुव्वत के तमाम मरातिब की तकमील कर दी है। अब कोई दर्जा नबुव्वत का है ही नहीं कि उसे अदा करने के लिए हुजूर के बाद किसी और की जरूरत हो। कायनात के रब ने आपको इल्म दिया, कामिल दिया, नबुव्वत दी, कामिल दी, शरीयत दी, कामिल दी, किताब दी, कामिल दी, हुस्न दिया, कामिल दिया, जमाल दिया, कामिल दिया, कमाल दिया, कामिल दिया, शरीयत दी, कामिल दी, किताब दी, कामिल दी, अदवार दिए, कामिल दिए, अखलाक दिए, कामिल दिए। ये कमाल आपको अदा करके ऐलान कर दिया, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हूँ। आप वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। कायनात के चप्पे चप्पे पे जहाँ जहाँ चप चप के लिए रब की रुबूबियत का डंका, वहाँ तक मोहम्मद की खत्म नबूवत का डंका। जज़ाकल अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। खत्म नबुव्वत का माना तकमीले नबुव्वत के है कि नबुव्वत के तमाम औसाफ, नबुव्वत का सारा इल्म, नबुव्वत के तमाम मरातिब, नबुव्वत के तमाम दराजात अल्लाह ने ज़ाते मोहम्मद में कामिल कर दिए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो खत्म नबुव्वत का माना तकमीले नबुव्वत के हुए, जिसका मतलब ये है मेरे नबी की नबुव्वत कामिल है, मेरे नबी की शरीयत कामिल है, मेरे नबी की किताब कामिल है। इसके ऊपर चंद एक दलाइल देने लगा हूँ। अल्लाह ने अगरचे नबुव्वत तमाम अंबिया को दी, लेकिन कामिल नबुव्वत आमीना के लाल को दी। अगरचे शरीयत तमाम नबियों को दी, लेकिन कामिल शरीयत आमीना के लाल को दी। अगरचे दीन तमाम अंबिया को दिया, लेकिन कामिल दीन अल्लाह ने आमीना के लाल को दिया। अल्लाह ने हर पैगंबर को दीन दिया, लेकिन किसी पैगंबर के दीन के साथ रब ने उस दीन के पूरी कायनात पे गालिब आने का वादा नहीं किया। लेकिन जब बारी आमीना के लाल की आई, कायनात का रब कहते हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। हबीब आपको मैंने जो दीन दिया है, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक हर कच्चे और पक्के मकान
आसमान में हुजूर की खत्म नबूवत का परचम बुलंद न हो जाए, हर कच्चे और पक्के मकाम में मेरे नबी का कलमा न पहुंच जाए। अल्लाह ने बाकी नबियों को दीन दिया, लेकिन उस दीन में तबद्दुल रहा, तगय्युर रहा। आज ईसाईयत अपने असली चेहरे के साथ दुनिया में मौजूद नहीं है। आज यहूदियत अपनी असली तालीमात के साथ दुनिया में मौजूद नहीं। उनमें तब्दीलियां आई, उनमें तगय्युरात आए, लेकिन अल्लाह ने चूंकि हुजूर को कामिल नबूवत अता की है, इसलिए जब दीन दिया तो दीन के साथ अल्लाह ने तकमील के वादा भी किया, इसकी हिफाजत का जरिया भी लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे नबी की जात पे रब का पहरा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नबी की किताब पे रब का पहरा। न ज़ाते नबूवत ने मिटना है, न किताबे नबूवत ने मिटना है, न तालीमात नबूवत ने मिटना है, न प्रोग्राम मिशन नबूवत ने मिटना है, न मिशन नबूवत ने मिटना है, न काज़े नबूवत ने मिटना है। इससे बढ़कर कहता हूँ, अल्लाह ने बाकी नबियों को दीन दिए तो किसी की दीन और शरीयत में जलाल गालिब था, किसी की शरीयत में जमाल गालिब था। यानी हुक्म की दो सूरतें हैं, एक जलाल है, एक जमाल है। लेकिन कुर्बान जाएं, उन्हें हुक्म की एक जेहत मिली। शरीयत मूसवी में जलाल गालिब था, शरीयत ईसवी में जमाल गालिब था। लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता कह के अल्लाह ने एतदार रखा, यानी जिसमें जमाल भी है, जिसमें जमाल जलाल भी है। ना एक जानिब नहीं बल्कि दोनों जानिबों की रायत रखी गई। बाकी नबियों की शरीयतों को देखे, एक अमल करें नेकी एक मिलेगी, एक काम करें सवाब एक दफा लिखा जाएगा। क्योंकि हुजूर कामिल नबूवत लेकर आए, कामिल शरीयत लेकर आए। ये एजाज अल्लाह ने सिर्फ हुजूर को दिया। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, आपकी उम्मत नेकी एक करेगी, मैं 10 को लिखता जाऊंगा। बाकी शरीयतों में एक नमाज है, सवाब एक का मिलेगा। मेरे नबी की शरीयत में यह खमसुम बि खमसीना, पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का मिलेगा। अल्लाह ये ज़ाब्ते अलग क्यों है? फरमाया इसलिए कि इनकी मास नबूवत नहीं बल्कि हुजूर को कामिल नबूवत अता की गई। बंदा तेज आंदा फिर इधर नू पाओ, मैं कहना पहले इधर नू हो रही। अल्लाह आपको ज़ायक़ा नसीब फरमाए। ताजदार खत्म नबूवत, हुजूर की खत्म नबूवत, कोई जुबान खामोश ना रहे। कमली वाले की खत्म नबूवत, मैंने माना समझाया है। खत्म नबूवत का माना तकमीले नबूवत के, तकमीले नबूवत के। इसी के चंद एक दलाल दे रहा हूं। बाकी अंबिया की शरीयतों को देखे, उनकी सीरतों को देखे, बड़ी जिम्मेदारी से छोटा होकर पूरी जिम्मेदारी से रस करने लगा हूं। कुरान करीम में 1.25 लाख अंबिया के नाम आपको नहीं मिलेंगे, इजमालन जिक्र है। मिनहुम मन कससना अलैहि, बास का किस्सा तो हबीब आपका बयान किया। व मिनहुम, और इन नबियों में बास वो है लम नक्सुस अलैहि, जिनका किस्सा हमने बयान नहीं किया। सराहतन 26 या 27 नबियों के नाम हैं। फिर इन 26 या 27 नबियों में 6 नबी वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने वस्फ़ इल्म के साथ किया। तो इल्म के किसी एक जेहत को बयान करके कहा वअल्लमना, हमने आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म लुगत अता किया। इल्म की एक जेहत का जिक्र है कि इल्म में से इल्म लुगत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। कंपटीशन और तकाबुल नहीं कर रहा। तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इस दायरे में रहते हुए हुजूर की खत्म नबूवत का माना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, इल्म की एक जेहत, एक तरफ, एक जानिब, एक पहलू को बयान
बयान करके कहा इन्हें इल्म लुगत अता किया गया। आगे चलिए, ये खिज़र अलैहिस्सलाम है, अल्लाह का कुरान कहते वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता किया, कायनात की तकवीमी इल्म, कायनाती इल्म अता किया, अल्लाह ने राजों का इल्म अता किया। इल्म की एक जहत का जिक्र है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कहा वअल्लिमना मंतिक़ अत-तय्र, हमने परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया। थोड़ा सा आगे बढ़िए, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कहा वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने इल्म सनत व हिरफत आपको अता किया, ज़ीरा बनाने का इल्म अता किया। इल्म की एक एक जहत का जिक्र है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कहा रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन ताबीरिल अहादीस, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया। इल्म की एक जहत का जिक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, छठे नबी की बात कर रहा हूं, जब आपका जिक्र आया तो कुरान कहता है वह हमने इनको युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत का इल्म अता किया। आइए, मेरे नबी की चूंकि नबूवत नहीं बल्कि कामिल नबूवत है, जब आपका जिक्र आया तो साबिक़ा नबियों की तरह इल्म की एक तरफ का, इल्म की एक जानिब का, इल्म के एक पहलू का जिक्र नहीं किया, बल्कि यूं कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तफसीरुल आयत बिल हदीस करूं तो मेरे आका फरमाते हैं ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने अव्वलीन का इल्म भी मुझे दिया, आखिरीन का इल्म भी मुझे अता किया। तमाम अंबिया के उलूम को जमा कर लिया जाए, तमाम फरिश्तों के उलूम को जमा कर लिया जाए, तमाम गौसों कुतुबों तालों के उलूम को जमा कर लिया जाए। सुनो, उलमाए देवबंद का अकीदा सारी कायनात का इल्म कतरे की मानद है, मुस्तफा का इल्म समंदर की मानद है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा। महज इल्म नहीं, पूरी कायनात में वो समंदर माउन ला साहिल लहू, ला साहिल लहू, हुजूर का इल्म वो समंदर है जिसका किनारा ही बाहर बेकरार। लेकिन इसके बावजूद आलिमुल गैब कौन है? साढ़े वड्डियां सानू अकीदा ही तो दसिया, उच्ची बोलो, आलिमुल गैब कौन है? बावजूद है कि इतना इल्म कि सब का इल्म कतरा बन जाए, तो हुजूर का इल्म समंदर है, और समंदर भी वो ला साहिल लहू जिसका किनारा ही कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरा अकीदा ये है अल्लाहुल गुयूब रब है, जर्रे जर्रे का मालिक वही है, क्योंकि ये मेरा अकीदा कुरान के मुताबिक है। अगर प्रोग्राम खत्म हो, खत्म नबूवत के परवानों आओ, तासुफ की ऐनक उतारो, जिद से निकलो, अपने खोलों से निकल कर समझने की नीयत से कहीं से कुरान उठा लो, अल्लाह का कुरान उठाओ, 7वां सिपारा सूरह इनाम पढ़ो, आयत नंबर 50 पढ़िए। अल्लाह ने कुल कह के हुजूर की जुबान से ऐलान किया, कुल ए हबीब आप फरमा दो, ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला आदमुल गैब वला अकूलु लकुम इन्नी मलक। 9 आयतें आगे आ जाए, 59 नंबर आयत में है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, तमाम मफातिही गैब की चाबियां वो रब के पास है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, वो उसने देने पे आया तो हबीब को इतना दिया, कायनात में सबसे बेमिसाल कर दिया। बेशक बेशक। अर्ज कर रहा खत्मे नबूवत का माना महज खत्मे नबूवत यानी इनकिताए नबूवत नहीं, बल्कि तकमीले नबूवत है। कामिल नबूवत अल्लाह ने आपको अता की, कामिल नबूवत आपको मिली। इसके ऊपर बहुत से दलाइल हैं, वक्त नहीं मुझे इजाजत दे रहा, मैं बहुत सा मुख्तसर सा एक खाका बना के लाया था। चलिए अल्लाह इन जूलों को कबूल कर ले। इन निकात को छोड़ के एक दो नुक्ता आपके सिमातों के हवाले करके आगे बढ़ना चाहूंगा।
आपकी रिसालत कामिल है, आपकी नबूवत कामिल है। एक और दलील देने लगा हूं, अल्लाह ने तमाम अंबिया को मोजज़ात अता किए, लेकिन आज किसी पैगंबर का मोइज़ा देखना चाहे आपको असली शक्ल में नजर नहीं आएगा। कोई हिम्मत करे ढूंढ के लाए, सुलेमान का तख्त नहीं मिलेगा। कोई ढूंढ के लाए, नारे खलील नहीं ला सकता। तो ढूंढ के लाए ज़बीहुल्लाह की छुरी को, वो आज नहीं देख सकता। कोई सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को देखना चाहे आज नहीं देख सकता। कोई यूसुफ पैगंबर के कुर्ता जो बाप याकूब की आंखों पे लगा, फरतब्ता बसीरा, आंखों की बिनाई वापस आ गई, कोई यूसुफ का कुर्ता नहीं ला सकता। कोई मूसा अलैहिस्सलाम का आसा नहीं ला सकता। कोई आज हिम्मत करके हज़रत ईसा के मौजों को दिखाना चाहे नहीं दिखा सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर के दो मौजज़े आज भी जिंदा रखे हैं। हर इंसान जिन्हें अपनी आंखों से देख रहा है, एक कुरान करीम है जो असली शक्ल में था, जैसे था आज भी वैसे है, क़यामत तक कुरान में बाकी रहना है। इसकी वजह क्या है? उनके मोल से बाकी नहीं रहे, आपका मोइज़ा बाकी रखा गया, इसलिए कि बाकी नबियों को जो मोइज़े मिले वो फेली थे, वो अमली थे। और उलमा समझते हैं फेल तब है जब पीछे फाइल हो, अरे ज़र्ब तब होगी जब पीछे ज़ारिब हो, अकल तब होगी जब पीछे आकिल हो, शुर्ब तब होगा जब पीछे शारिब हो। जब फाइल ही ना रहा तो फेल भी बाकी न रहा। जब पैगंबर ना रहे तो उनका मौजज़ा भी न रहा, क्योंकि मौजज़ा शाहिद होता है, नबी की नबूवत का गवाह होता है। जब नबी की नबूवत ना रही तो गवाह की जरूरत भी ना रही। लेकिन आपका कुरान की शक्ल में मिलने वाला मौजज़ा ये फेली नहीं है, ये इल्मी मौजज़ा है। मेरे नबी के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद आज भी कुरान बाकी है। एक एक कुरान का हाफिज़े कुरान खत्म नबूवत की दलील है। एक एक बच्चा कुरान का हाफिज पुकार पुकार के दुनिया को बता रहा है क़यामत तक का जमाना मोहम्मद की खत्म नबूवत का जमाना। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत। अजीज दोस्तों, दरमियान में बहुत सी बातें हैं, बोल को जल्दी के साथ आगे बढ़ता हूं। खत्म नबूवत का माना तकमील नबूवत के हैं। हुजूर की नबूवत कामिल है, आपकी नबूवत, सारा मजमा बोले तो मैं अगली बात करूंगा। आपकी नबूवत कामिल है। मुफ्ती साहब की आवाज आ रही, तुम्हारी नहीं आ रही। आपकी नबूवत, अब पूरी तवज्जो चाहिए। जब आपकी नबूवत कामिल है तो कामिल होने नासिख होना लाजिम है। कामिल में दस्तगाही बात कर रहा हूं, लेकिन इसे समझना जरूर। कामिल होने और नासिख होने में निस्बत तलाजुम की है, ये दोनों एक दूसरे को लाजिम और मलजूम है। मेरे नबी की नबूवत कामिल है, जब कामिल है तो ये नासिख है, क्योंकि कामिल ही दूसरों के लिए नासिख बनती है, कभी नाकिस वो नासिख नहीं बनती। तो जो है आपकी गाजी साहब तो तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी तवज्जो मेरा लगाओ तो तुम्हारे सामने आना इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, रबत ना तोड़े। आपकी नबूवत कामिल है, आपकी नबूवत कामिल है। जे तवज्जो हट गई तो फिर किसी और पास टुर पे में। अरे जी जज़ाकल्लाह, तवज्जो है, ये बात पूरी तवज्जो तलब है, बरीक सी बात है। आपकी नबूवत सब बोले कामिल होने पे मैंने आपके सामने चंद दलीलें दी। कामिल होने नासिख होना लाजिम है। मैं मिसाल देता हूं, एक अदालत ने फैसला किया, छोटी अदालतें फैसला करती, इनका नाफिजुदा फैसला बड़ी अदालत जाके मनसूख कर देती। ये नसख का हक उसे इसलिए मिला कि वो पहलों की बनिस्बत कामिल है, वो पहलों की बनिस्बत कामिल ही नासिख बन सकता है। मुफ्ती साहब नाकिस नासिख नहीं बन सकता। आखिरी अदालत ने इसलिए पहलों के फैसले को मनसूख किया कि जो आखिरी थी वो कामिल थी। अब जब मेरे नबी की नबूवत खातम है तो खातम को कामिल होना लाजिम है।
तीसरी निस्बत बयान कर रहा हूं, जो कामिल हो वो नासिख होता है। जब मैंने दलाल से समझा दिया कि मेरे नबी की नबूवत कामिल है, तो मानना पड़ेगा कामिल भी है, बाकियों के लिए नासिख भी है। बेशक बेशक। आपकी नबूवत बाकी नबूवतों के लिए नासिख, आपकी किताब बाकी किताबों के लिए नासिख, आपकी शरीयत बाकी शरीयतों के लिए नासिख, आपका दीन बाकी अदियान के लिए नासिख। आपकी तवज्जो चाहिए। चौथी निस्बत बयान करने लगा हूं, जब आप खातम हैं तो कामिल हैं, जब कामिल हैं तो नासिख हैं, और जो नासिख हो वही आखिरी होता है। जो नासिख हो वही आखिरी होता है, क्योंकि अगर बाद में किसी और ने आना हो तो ये नासिख नहीं बनता। जब मेरे नबी की नबूवत कामिल है तो फिर नासिख भी है, जब नासिख है तो आखिरी भी है। थोड़ी तवज्जो से अगली बात सबसे वजनी करने लगा। इस फकीर का दावा है जो मेरे नबी की नबूवत खातम तो कामिल है, जब कामिल है तो नासिख है, जब नासिख है तो आखिरी है, और जो आखिरी हो वही पहला होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। शायद समझ नहीं आई। जो आखिरी हो वही पहला होता है। फिर कह रहा हूं, जो आखिरी हो वही सजे खबे सारे पहला होता है। ओ मिर्ज़े कादियानियत की ज़ुर्रियत, तुम पीटते हो, ये आखिरी मानते हैं। ये फकीर तालिब इल्म छोटा बल्कि सगीर नहीं सुगैर, इसमें तस्गीर बोल के कह रहा हूं, बहुत छोटा, अपने काबिल की जूतियां सीधा करने वाला ये दावा कर रहा है। तुम रोते हो ये हुजूर को आखिरी मानते हैं, मेरा दावा है हुजूर आखिरी भी हैं, अव्वल भी हैं। बेशक बेशक। आप आखिरी भी हैं। एक फितरती उसूल है, दलील देने लगा, दो दलील। एक फितरती उसूल है, जो वस्फ किसी शय पे खत्म होता है शुरू भी वहां से होता है। जो वसफ, जो खूबी किसी शय पे खत्म हो, उलमा मुदर्रिसीन खास तवज्जो, जो वसफ जहां पे खत्म हो शुरू भी वहां से होता है। एक हिस्सी मिसाल, एक कायनाती मिसाल। पहले कायनाती मिसाल देता हूं, सूरज, इस पे रोशनी खत्म है। सूरज तो वड्डा रोशनी कोई नहीं दे सकता। बेशक। सब तो वड्डा बल्ब अल्लाह दा लाया होया है। बेशक। इनकी बैटरी कदी खत्म नहीं हो सकती, नहीं हुई, इनू कदी चार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, इसे कभी रिफ्रेश नहीं कराना पड़ता। लशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये रब का सूरज है। अब देखें रोशनियां सूरज पे खत्म है तो इसे खातमुल अनवार कहते हैं। अब सवाल ये है, जिस पे रोशनियां खत्म है, जब कायनात में रोशनी फैलती है तो आगाज कहां से होता है? आगाज कहां से होता है? क्या बात? जब रोशनी इस पे खत्म है तो शुरू भी यहां से हो रही है। ये रोशनियों का खात्म भी है, मबदा भी है, रोशनियों को खत्म करने वाला भी है, रोशनी का आगाज करने वाला भी है। दूसरी हिस्सी मिसाल देता हूं, बाप होना हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे खत्म है। इनसे बड़ा बाप कोई नहीं। बेशक। इन्ने पुत्र किसी और दे हैं नहीं, मौलवियां दे ज्यादा होंगे, बड़ी गल, एक दर्जन होएगा। हजरत आदम से ज्यादा किसी की औलाद, थोड़ा सा हिम्मत करो, नहीं, किसी की औलाद नहीं है। अबूवत वाला वस्फ, बाप होने वाला वस्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे खत्म है। अब सवाल कीजिए, बाप होने वाला वस्फ शुरू कहां से हुआ? वाह जी वाह। शुरू कहां से हुआ? मेरा दावा यही है, जो वसफ किसी पे खत्म हो शुरू भी वहां से होता है। अबूवत का वस्फ हजरत आदम पे खत्म है तो शुरू भी हजरत आदम से हुआ। अब आइए जरा दलील की तरफ। मेरे नबी की नबूवत खातम है तो कामिल है, जब कामिल है तो नासिख है, और जो नासिख हो वो आखिरी होता है, और जो आखिरी हो वो पहला होता है। ये महज मेरा तखय्युल नहीं, महज मेरी शोला नवाई नहीं, मैं हदीस से सबूत देता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, कुंतु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरहुम फिल बास। लोगों, अव्वल भी मैं हूं, आखिरी भी मैं हूं। हाँ, अव्वल और एतबार से, आखिरी और एतबार से। तख्लीक में अव्वल हूं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अभी कुछ नहीं था, रब ने रूए मोहम्मद को पैदा किया, तभी तो कासिमुल उलूम वल खैरात
हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम ननौतवी ने कहा सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्शे लेके रोशनी बज़्म कोना मकाम को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो उसने मुतलक में शाहिद भी, मशहूद भी, ज़ाहिरन वो उम्मियों में उठाया गया। अरे हशर का हो हम तुझे किस लिए है कासिम, मेरा मौला है वो, मेरा आका है वो, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर पिलाया गया। मान जा नबूवत का आगाज़ भी मुस्तफा है, नबूवत का इख्तिताम भी मुस्तफा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, मकाम अहले बैत, अकाबिरीन उलमाए देवबंद। बड़ी तवज्जो भाई, यहाँ एक बहुत जबरदस्त उन्वान और मजमून है। एथी ब्रेक, अगला पॉइंट मैंने साढ़े तक जो वक्त दिया गया बात पूरी करनी है। खत्म नबूवत का अकीदा इतना मुबारक है, कायनात नहीं बनी, आलम अरवा में अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबूवत को बयान किया। वही आखद अल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम। ये जो सुम्मा है इसके पीछे खत्म नबूवत की दावत छुपी है। इख्तिसार के साथ आइए, जब आलम अरवा के बाद आलम दुनिया में कदम रखें, पूरी हिम्मत के साथ, तहद्दी के साथ और छोटा होकर जिम्मेदारी से रस कर रहा हूं। पहले इंसान जब दुनिया में आए वो पहले नबी भी थे। अल्लाह ने हज़रत आदम के दुनिया में कदम रखते ही हुजूर की खत्म नबूवत की बात की। क्या कहने इस प्यारे अकीदे के, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे एजाज की क्या बात है। हज़रत आदम जब दुनिया में आए, खसाइस कुबरा में लिखा है बैना कातिफई आदम मकतूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। हज़रत आदम के दोनों कंधों के दरमियान रब ने मोहर लगाई। फिर आदम की नबूवत की बात नहीं, कंधे आदम के मोहर पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। आपकी औलाद में वो नबी आएगा जो तमाम पैगंबरों का खात्म होगा। फिर आलम दुनिया के बाद जरा आलम बरज़ख का रुख कीजिए। जब मोमिन आदमी कब्र की जिंदगी में जाएगा, तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है मलकुल मौत और मुनकर नकीर आएंगे। वो मुनकर नकीर सवाल करेंगे, बता रब किसे कहता है? वो आदमी जो शिरक से बचता हो, ना अल्लाह की जात में शरीक किया, ना अल्लाह की सिफात में शरीक किया, ना अल्लाह की इबादत में शरीक किया। वो कहेगा रब्बी अल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। भी सवाल करेंगे दीन किसे मानते? वो कहेगा दीन इस्लाम को, इस्लाम को दीन मानता हूँ। मुनकर नकीर पूछेंगे मन नबी का, बता तेरा नबी कौन है? खत्म नबूवत के महाज पे काम करने वालों उलमा, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ऐ मुजाहिदो, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ऐ सरबकफ नौजवानों, आपको सलाम पेश करता हूँ। जब खत्म नबूवत के परवाने से मुनकर नकीर पूछेंगे नबी किसे मानता है, तो तफसीर दुर्र मंसूर कहती है वो दीवार, वो मुहार, वो खत्म नबूवत का परवाना कहेगा मैं उसे नबी मानता हूँ। रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह पे पूरी थी, लेकिन दुनिया में जो नारा बुलंद करता रहा उसे कब्र में भी सुकून ना आया। वो कहेगा उस नबी को मानता हूँ जो अल्लाह के रसूल भी हैं, खातमुन नबिय्यीन भी हैं। आलम अरवा में, आलम दुनिया में, आलम बरज़ख में क़यामत का दिन होगा, इंसानियत परेशान होगी, हिसाब किताब का मामला शुरू हो, सारे नबियों के पास जाएंगे, आखिर में हुजूर के पास आएंगे। हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबू मुहम्मदा, जाओ मोहम्मद के पास जाओ। सारी की सारी इंसानियत जब हुजूर के पास आएगी यूं भी कहेगी आप सिफारिश करें, पहले ये इकरार करेगी अंत रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप नबियों के खातम हैं, आप सिफात करें। हुजूर सजदा करेंगे, इतना लंबा सजदा आज तक नहीं होगा। रब कहेंगे इनफारासा या मोहम्मद सल तूता कुल तुस्मा इस्फा तुशफा। अभी मांगो तो सही, मांगना आपका काम है। खत्म नबूवत के परवानों, हुजूर अपने आशिकों के लिए सिफात करते जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुलता जाएगा। नारे तकबीर, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत। पूरी तवज्जो भाई, चारों बड़े जहानों में
न सिर्फ रिसालत का जिक्र, खत्म नबूवत का जिक्र। आपकी अगर पूरी तवज्जो हो, मुझे नहीं पता मिजाज क्या है, लेकिन जिम्मेदारी समझता हूं जो मुझे समझ आए। एक चोर दरवाजा और है जिसके जरिए खत्म नबूवत पे हमला हुआ। एक कादियान से हो रहा जो कह रहे हैं नबूवत जारी है। एक और दरवाजा है, आपको चोर दरवाजा उखा लगता है ना, चोर सोच वो बड़ा छुपा हुआ बैठा, किसी किसी को पता लगता है ना। लेकिन हमारे बड़ों ने मेहनत इतनी कर दी है, चाहे कादियान से हमला हो चाहे ईरान से हमला हो, ये मानते हैं हुजूर नबियों के भी खात्म है, मासूमों के भी खात्म है, ना मासूम आ सकता है ना नबी आ। बेशक बेशक। तो जो भाई मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के अमीर है। उनकी किताब है, उलमाए किराम से कहूंगा, मैंने ज़माने तालिबी में भी बार बार पढ़ा, बोलते हकाए। किताब का नाम क्या? उसको पढ़े। आपने दावे से साबित किया है इमामत का अकीदा, पसे पर्दा खत्म नबूवत का इनकार। अल्लाह। इसलिए कि 12 इमामों की तारीफ वो की गई जो न सिर्फ नबी की बल्कि नबियों से भी बढ़कर। यूं कहा गया अल आइम्मतु अफज़लु मिनल अंबिया, नबी कौन है? हमारे इमाम नबियों से भी बेहतर। मुझे आप बताएं, जो शख्स ये कहे हुजूर के बाद नबूवत जारी है, नबूवत जारी है, वो खत्म नबूवत को मानता या मुनकिर है? मुनकिर है, मुनकिर है। आवाज नहीं आ रही, मैं स्पीकर के बोल रहा, थले बैग नहीं बोल रहे, बोले भाई। ये पंखा लगा हुआ पंखा, इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरबी च की आंदे ने मोलियां की आवाज होनी थोड़ी कोनी होनी। अब तो जो चाहिए, इसको फैन भी कहते हैं, इसको पंखा भी कहते हैं। मैं कहूं पंखा चल रहा है, क्या मतलब? जज़ाकल्लाह, क्या मतलब? फैन चल रहा है। अच्छा, मैं नाम बदल के यूं कहूं फैन चल रहा है, क्या मतलब? नाम ही बदला है ना, काम एक है, मिस्दाक एक। इसी तरह समझे, अल्लाह का हर नबी मासूम होता है, अल्लाह का हर नबी, और जो मासूम होता है वो नबी होगा। क्या बात। जब हम किसी के बारे में ये मान लें कि ये नबी है, अब कहें ना कहें हमने ये भी मान लिया कि वो मासूम है, क्योंकि मासूमियत में और नबूवत में इफ्तराक नहीं है, इनमें जुदाईगी नहीं, बल्कि तराजू में है, लाजिम और मलजूम है। और नबी इतना मासूम होता है, इतना मासूम होता है, अगर 12 कमरों में लेके जाके कोई कहे ना हाई तलाक, आए है, वाह जी वाह, क्या बात। मैं की जा 2 मिनट छोड़े होते ले लेना, सिर्फ 2 मिनट। बहुत अच्छा, गल बड़ी अजीब जी आ गई। बंद कमरों में जाके कहे ना हाई तलाक, नबी इतना मासूम होता है। अल्लाह कहते हैं यूसुफ निकलो, अल्लाह निकलो। मालूम हुआ वो जगह रब को प्यारी नहीं, तो जो हुजरा रब को प्यारा ना हो, अल्लाह नबी को रहने नहीं देता। क्या बात है, क्या बात। जो हुजरा वो जुलेखा का हुजरा था, प्यारा नहीं लगा रब को, फरमाया यूसुफ यहां से निकलो। तो मालूम तो हो गया ना, जहां इस पे हमला हो रहा हो, अल्लाह नबी को रहने नहीं देते, और जहां नबी सो जाए, अल्लाह क्या बात। नबी आराम कर ले। मालूम हुआ वो हुजरा सिर्फ पसंद ही नहीं, वो इतना पसंद आया, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। दुनिया जन्नत की तो तलाशी है, जन्नत मुस्तफा के रोजे को चाहती है। जो कमरा रब को पसंद ना आए, अल्लाह नबी को रहने देता नहीं, और जो आयशा का हुजरा पसंद आ जाए, नबी को वहां से जाने देता नहीं। नारे तकबीर। शान अम्मी आयशा सिद्दीका, मकामी अम्मी आयशा सिद्दीका, अज़मत सहाबा। तू है बेटी, सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर। ए अम्मी आयशा, तेरे मुकद्दर का ता क़यामत नहीं कोई हमसर, तेरे बहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले पे होठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया। तू जिस मकाम में कभी मकी थी, क्या बात। जिस मकाम में कभी मकी थी, तू जिस हुजरे में कभी मकी थी, रब ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। सुभान अल्लाह। समझाना चाह रहा हूं, हर नबी मासूम होता है, हर नबी। जो शख्स ये कहे कि नबूवत जारी है, वो कह रहा है कि मासूमियत जारी, क्योंकि जो पंखा है वो फैन है, जो फैन है वो पंखा है, जो नबी है वो
बोली बोले वो, और जो मासूम है वो नबी है। जो शख्स ये कहे नबूवत जारी है वो मासूमियत के जारी होने का अकीदा भी रखता है। और जो शख्स ये कहे मासूम आ सकते हैं, वो कहे ना कहे, वो कह रहा है कि नबूवत जारी है। अरे तूने उसको क्या समझ लिया? वो खत्म नबूवत का गद्दार है, वो खत्म नबूवत को मानने वाला नहीं है। हमारे बड़ों ने समझाया, चाहे खत्म नबूवत के हमला यूं कह के हो कि नबूवत जारी है, चाहे खत्म नबूवत पे हमला यूं कह के हो कि मासूमियत जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक रगों में खून है, जब तक सांसों में सांस है, आखिरी कतरे तक खत्म नबूवत का परचम लहराते रहेंगे। खत्म नबूवत का ताक़ुब करते रहे। इंशाअल्लाह तैयार है? इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का परचम बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह। कौन कौन चाहता है बुलंद करेंगे? हाथ खड़े करें। ऐ नौजवाना ने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़े से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 है मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। अरे जला डाली थी कश्मियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी तो हम भी बाकी हैं, असहाब व आल की इज्जत रही बाकी तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो, मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है। खत्म नबूवत पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।